So, good morning, dear all. Let's today we are going to be discuss about the new method, the area movement method, which has been used to be find out or calculate the slope and deflection of the beam at is the desired location where you want. So this method is different from other which we have discussed in the last class, but it may be useful full like other method. So this method say about, so this is about the method. So in this method, before applying this method, first we have to be draw the bending moment diagram of given beam. What the beam is given, loaded beam is given in the question. First, you have to be draw the bending moment diagram for applying this area moment method. So one thing will clear, you have to be draw the bending moment diagram for given loaded diagram. This is the first step. So you all know that how to we draw the bending moment diagram for a loaded diagram, because you all are studied already this thing in the last chapter, where you have in name of the chapter is shear force and bending moment diagram. So according to this method say this area of bending moment diagram directly give you the slope. The area of bending moment diagram gives you slope, and of first moment of area of the bending moment diagram give you deflection. और समझने की कोशिश करते हैं. Suppose this this is a called whole this structure is a called the bending moment diagram for above load diagram. But in question some ask you, you find the slope and deflection at this section by one by one, and section by two and by two. There must be two sections. They will give you two sections where you are supposed to be calculate the slope and deflection. So in the present diagram, so we need to be calculate slope and deflection first. This location by one location, and second one is the by two location. So specifically the distance of this first section is at x1 distance, and distance of the second section is at the x2 distance. And for solving for getting the area of this one, we need to be assume a small elementary area which thickness is dx, and its distance from support A is x. Okay, now we have to be what the second step, what you need to be do that first moment of the area of bending moment diagram will give you deflection. So आपको किसी पर्टिकुलर एक सपोर्ट से उस एरिया का सीजी पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है, मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया हुआ है कि जब किसी भी एरिया का मोमेंट निकालना होता है, सो उस टाइम पे उस एरिया की सीजी से मल्टीप्लाई करते हैं. तो सीजी, सपोज द सीजी ऑफ दिस एरिया, so new area we have, what new area we have considered, a b c d e f. ये जो कलरफुल वाला है ना, ये है आपका न्यू एरिया. इस एरिया को आपको कैलकुलेट करना है. तो हमने माना कि एरिया ए बी सी डी जो है उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो इस पॉइंट पे ऐड कर रहा है, माना है, वी आर सपोज दैट, एंड द डिस्टेंस ऑफ दिस सी जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज at a distance
x बार। ये पूरा एजम्पशंस जो भी हमको लेना था, जिस सेक्शन में हमको सीजी फाइंड आउट स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है, वो सेक्शन है बाय वन बाय टू। देयर इज टू सेक्शन, एक ये वाला और एक ये वाला। और इस जो सेक्शन के अंदर आएगा उस एरिया को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, वो आप कर लोगे, सिंपल डायग्राम रहेगा। नहीं होगा तो कुछ ना कुछ आपको पास ऐसा कैलकुलेट होगा कि यू कैन एबल टू फाइंड द एरिया ऑफ दैट। सो फर्स्ट थिंग इज दैट कि अब इस स्मॉल एलिमेंट्री एरिया के थ्रू हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे। तो ये चीज आपको शायद समझ में आ गई होगी। नाउ अब हमको पता है द डिफरेंशियल इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ कर्वेचर इज d स्क्वायर बाय अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू m। इसको हम एक्चुअली इसके इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 इज दिस, ठीक है, दिस इज ए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। और ये वाला इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, और ये इसको इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज 3, ठीक है। सो द ई आई इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम। सो ये वाली हमारी इक्वेशन है, देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एम। सो मैथमेटिक्स जो है आपको अलाउ करता है कि आप उसके दोनों टर्म, दोनों साइड आप किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई कर सकते हो, सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो उसके हिसाब से हम बाई मल्टीप्लाइंग डी एक्स इन द बोथ साइड इन दिस इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया dx का दोनों साइड में। अब देखिए एम डी एक्स जो है वो शो करता है इस बीम में इस एरिया को, एम डी एक्स इसकी विड्थ है dx, और ये पूरा का पूरा बेंडिंग मोमेंट, ये एलिमेंट्री स्ट्रिप ले लिया आपने तो ये पूरा का पूरा m है, m बेंडिंग मोमेंट का ए हो, उसमें से अगर आपने dx को लिया तो दैट इज कॉल्ड द एरिया ऑफ दैट एलिमेंट्री स्ट्रिप, वो उसको रिप्रेजेंट करेगा। चलिए अब हम इसको इक्वेशन नंबर जो 2 है, इक्वेशन नंबर 2 को इंटीग्रेट करते हैं दोनों से। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, किस दोनों लिमिट लगाएंगे, कौन सी वाली, एक कहाँ से करना है, यहाँ से लेके बाय वन से बाय टू से बाय टू तक, इस सेक्शन से। तो उसकी डिस्टेंस x1 है और इसकी डिस्टेंस टोटल सपोर्ट ए से पहले की x1 है, दूसरे की x2 है। सो इस लिहाज से हम इसको जैसे ही इंटीग्रेट किया तो ये आएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे dy अपॉन dx को, दिस बिकम dy अपॉन dx एंड x1 x2 एंड दिस बिकम mx x1 एंड x2। सो दिस dy upon dx is called slope, आपको पता है पहले से dy upon dx is called slope on that particular point, and where x1 x2 is representing the distance, x1 representing the first distance of first section and second section, x2 is representing and a distance from the a support, ये है। तो ये जो पॉइंट है आप समझो, ई आई तो कांस्टेंट है, सो दिस इज कॉल्ड dy upon dx x2 x1 is, इट्स मीन द स्लोप एट x2 माइनस स्लोप एट x1, मतलब सेक्शन 1 पे जो स्लोप है और ये सेक्शन 2 पे जो स्लोप है माइनस सेक्शन 1 पे जो स्लोप है, उन दोनों को रिप्रेजेंट करता है दिस रिलेशन। और ये क्या करता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एम एक्स x1 to x2 पूरे एरिया को रिप्रेजेंट करता है। ये देखो एम पूरा है, एम ये पूरा है, अगर तुम यहाँ से लेके यहाँ तक इसको इंटीग्रेट करोगे तो इट्स रिप्रेजेंटिंग द होल एरिया ऑफ दिस ए बी सी डी ई एफ को रिप्रेजेंट कर रहा है वो होल एरिया। सो नाउ दिस रिलेशन से this is called the area of bending moment diagram between the two sections what we have taken,
ठीक है। सो नाउ दिस इसको, इस वाले को हम क्या लिख सकते हैं, ये देखो जरा, हम इसको लिख सकते हैं ई आई आई टू माइनस आई वन, वेयर आई टू इज स्लोप एट पोजीशन 2, जो दूसरा सेक्शन है, और I1 इज द स्लोप एट फर्स्ट सेक्शन। फर्स्ट सेक्शन मतलब y1 बाई वन, सेकेंड सेक्शन y2 बाई टू। ठीक है, तो देन दिस इज कॉल्ड द एरिया ऑफ द बेंडिंग। अभी तो पहले ही लिखा हुआ है ये वाला पार्ट, एम एक्स एक्स वन एक्स टू, तो पहले था एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बिटवीन दैट बाय वन, वो सेक्शन 1 टू सेक्शन 2। अब ये हो गया, ये इक्वेशन जो आपको मिल गई ना नई वाली, ये दिस इक्वेशन इज इट इज फॉर इट कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द स्लोप एट ए गिवन लोकेशन, जहां पर आपको चाहिए। अब जो इक्वेशन नंबर 1 थी पहली वाली, जिसको मैंने बाद में ये देखो लिखा है, ये वाली इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन में इस बार दोनों साइड एक्स डी एक्स का मल्टीप्लाई कर रहा है, ये देख लो एक्स डी एक्स, वही इक्वेशन में। सो जब आपने एक्स डी एक्स से इसको मल्टीप्लाई किया, सो दिस रिलेशन बिकम लाइक दिस। अब इसको हम, पहला जो पार्ट है इसका, इसको वी आर गोइंग टू बी इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बाय टू पार्ट फंक्शन, टू फंक्शन है, पहला वाला ये है, दूसरा एक्स है। तो इस वाले इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, तो पहला इसे दूसरा वाला पहले कॉमन आ जाएगा, इसका आप क्या करोगे, इस वाले को आप इंटीग्रेट करोगे, तो जैसे इंटीग्रेट करो इट्स बिकम डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया। यस सर। ठीक है, उसके बाद एक्स को करोगे डिफरेंस, वो करोगे तो एक्स तो 1 हो जाएगा, और ये वाला पार्ट आपका बचेगा माइनस वाई का। सो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, x1 टू x2 इसकी लिमिट रख दी, और ये वाला जो पार्ट अगर गौर से आप देखोगे तो जो बेटा एम डी एक्स, जो एम डी एक्स x1 x2 था, वो तो उसका एरिया है, और x का मल्टीप्लाई कर दिया तो उसका हो गया फर्स्ट मोमेंट ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बिटवीन द सेक्शन। ठीक है, फर्स्ट मोमेंट ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बिटवीन द सेक्शन अबाउट ए पॉइंट का। तो अब देखिए इसको, अब जब ये आ गया, आप अब इसकी लिमिट रखना। अब लिमिट ऐसे रखना, समझो यहाँ थोड़ा सा समझने की बात है। लिमिट x1 x2 रिप्रेजेंटिंग द पोजीशन ऑफ 1 एंड 2, लोकेशन ऑफ 1 एंड 2 सेक्शन। तो जब आप लिमिट 2 रखोगे तो देखो कैसे हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, और ये डी वाई अपॉन डी एक्स जो कि स्लोप है कहाँ पर, x2 पे, तो उसका नाम हो गया I2 सेकंड लोकेशन पे। एंड जब सेकंड लोकेशन का ये हो गया बाय 2, सेकंड लोकेशन का डिफ्लेक्शन। जब फर्स्ट लोकेशन रखो यहाँ रखने जाओगे तो ये बिकम हो जाएगा x1 I1 माइनस y1, और ये तो आपको पता ही है एरिया, ए फॉर एरिया ऑफ ए बी सी डी, जो ए बी सी डी ई एफ का एरिया, और उसके सी जी की डिस्टेंस फ्रॉम ए। सो ये रिलेशन, जो दूसरा रिलेशन वी कैन डायरेक्टली यूज फॉर कैलकुलेटिंग द डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम। तो ये दोनों आपको, अगर आपको याद रहेंगे तो यू कैन इजीली अप्लाई द एरिया मोमेंट डायग्राम, एरिया मोमेंट मेथड टू फाइंडिंग द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट द आस्क्ड लोकेशन, या जहां पर भी क्वेश्चन में पूछता है। और ये मेथड के पूछे अगर क्वेश्चन में आया डिस्क्राइब और द एरिया मोमेंट मेथड, तो यही आपको करना है एज इट इज, इतना ही। ठीक है, देन इसमें वी आर गोइंग टू बी सी दैट नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। सो सर, हाँ सर जहाँ पे इंटीग्रेशन किए वहां से फिर एक बार समझा दीजिए सर। हाँ, यहाँ से ऊपर सर, ऊपर थोड़ा। ये यस सर, इंटीग्रेशन जब, यस सर। इसमें हमने क्या किया, दोनों साइड जो इक्वेशन नंबर 1 आपको याद है, इक्वेशन नंबर 1 का मतलब आपकी वही ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, वही इक्वेशन नंबर 1 है। एक्स डी एक्स का अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई करने के साथ हमने क्या किया, उसको इंटीग्रेट करना है, तो हमने ये इंटीग्रेशन के सिंबल भी लगा दिए। और कहाँ से करना है,
हम कहाँ से करेंगे, ये बोल रहा है यहाँ से करना है, इस पोजीशन से लेके इस पोजीशन से, तो इसकी डिस्टेंस कितनी है x1 और इसकी डिस्टेंस कितनी है x2, कहाँ से, a से, x2। ऐसे, तो इसलिए वो x1 से x2 तक जा रहा है यहाँ, तो ये x1 to x2, और फिर इसको सिंपल आप इंटीग्रेट कर दिए, इंटीग्रेशन है ये, सिंपल इंटीग्रेशन है, आपको तो करना आता है ना इंटीग्रेशन, दो पार्ट से करोगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन वाला, ये वही फर्स्ट फंक्शन सेकंड यस फंक्शन आपने इंटीग्रेट कर दिया, तो यू ऑब्टेन दिस वन, ये आपको ये मिल गया। और इधर का पार्ट तो आपको पहले ही समझ में आ गया था कि जो एम डी एक्स है, एक्स को अगर हटा दो यहाँ से, एम डी एक्स का इंटीग्रेट कर दो x1 to x2, तो वो इसका मतलब ये है, एम मतलब ये पूरा, डी एक्स ये छोटा वाला एम, तो इस पार्ट का अब अगर इसको इंटीग्रेट कर दो यहाँ से यहाँ तक, तो ये पूरा ए बी सी डी ई एफ हो जाएगा, ये उसका मतलब है। सो आपको ये दो रिलेशन मिल गया। अब थोड़ी सी एक छोटा सा न्यूमेरिकल्स है, वो न्यूमेरिकल्स से थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। लेट्स देखते हैं, या तो ऐसे न्यूमेरिकल आ सकते हैं जिस तरह से ये दिया हुआ है, या तो आपको न्यूमेरिक वैल्यू दी जाएगी और उसके उस हिसाब से आ सकता है। कभी या तो यूडीएल लोड लगाएगा या तो पॉइंट लोड लगाएगा, दोनों वाला तो नहीं लगाएगा, टफ हो जाएगा थोड़ा सा, सिंपल क्वेश्चन आ सकता है कंपैरेटिव विज्ञान में एज वेल एज आरजीपीवी आल्सो। ठीक है, कंपैरेटिव विज्ञान में ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है क्योंकि ये बहुत आसान हो जाते हैं। नीचे ट्राइंगल बना दिया, अभी तो ठीक है, अभी तो थोड़ा सा गड़बड़ है, अगर यहाँ पर पॉइंट लोड होता है तो इट विल बिकम ए ट्राइंगल, फिर एरिया निकालना थोड़ा आसान रहता है। नाउ लेट्स सी, अ सिंपली सपोर्टेड बीम span length L, span length L मतलब ये total length is L, subjected to the UDL which intensity is W throughout the length, and determine the slope at A, मतलब यहाँ पर निकालना है slope, and deflection at C by moment area method। moment area या area moment दोनों नाम कोई दिक्कत नहीं है, कहीं moment area रहता है कहीं area moment रहता है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। Then ये जो इसको लेट्स इरेज करें, चलिए सो चलिए आइए तो यहाँ पर निकालना है आपको ए और सी पर। तो पहला सेक्शन आपका ए हो गया, पहला पार्ट ए हो गया, दूसरा सी हो गया। इसका मतलब जो पहले y1 था वो ए पे आके खड़ा हो गया इधर इधर, और दूसरा by2 यहाँ हो गया। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब मेरे को सिर्फ इससे मतलब है, किससे, AC1 इस पार्ट से, इस सेक्शन पे निकालना। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है यू कैलकुलेट द स्लोप एट ए डिफ्लेक्शन एट सी, तो क्वेश्चन ने बोल दिया कहाँ, ए से सी, तो मेरा इससे मतलब है। अब when a beam subjected to uniformly distributed load throughout the length, और कौन सी बीम, सिंपली सपोर्टेड, उस केस में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो बीच में होगा, इस पॉइंट पे होगा, उसकी वैल्यू होती है WL²/8। नहीं याद रहता तो निकालना आता है, आप यहाँ मिड सेक्शन में निकाल सकते हो। तो उसके लिए आपको पहले रिएक्शन निकालना पड़ेगा, क्योंकि यूडीएल है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो सब क्या ये टोटल लेंथ कितनी है, W × L, ये हो जाएगा WL/2 और इस सेक्शन में आप बेंडिंग की इक्वेशन बना लेना, यू विल गेट दिस सेम वन WL²/8। मेथड वही है, इसको याद है तो डायरेक्ट लगा देना, नहीं है तो निकाल के लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ तक आ गया, अब हमको ये पार्ट पता चल गया, ये ऊंचाई पता चल गई बेंडिंग मोमेंट की, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट दिस CC1 पता हो गया आपको, और AC पहले से पता है L/2, तो CC1 AC पता है। जब ये दोनों पता है तो अब हमको ACC1 का एरिया निकालना है। तो AC1 एरिया उस बिल्डिंग मूवमेंट डायग्राम का एरिया है। तो ये जो एरिया है ये इधर कर्व है, दो साइड फ्लैट सरफेस है। तो आप इस सरफेस इस ऐसा जब आपको कंटूर मिलेगा उस टाइम पे आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, 2/3 दिस वन CC1 ये वाली ऊंचाई और दिस AC, तो यू विल गेट द एरिया ऑफ दिस कंटूर। तो ये फॉर्मूला थोड़ा याद रख लेना। तो इट्स आपको अब ACC1 का एरिया मिल गया है।
जैसे आपको ACC1 का एरिया मिला, आप फॉर्मूला उठा लाओ, क्या था स्लोप निकालने का, EI I2 minus I1 and to area of the बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, वही था। ये देखो, जहां जो तुम्हारा I2 था, ये I2 था, वो C उसकी जगह ले लिया है, और जो 1 था उसकी जगह A ले लिया है। तो नाउ इट्स बिकम IC माइनस IA इक्वल टू दिस एरिया। अब आपको पता है कि जहां पर डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा स्लोप जीरो होता है, तो मिड पॉइंट पे डिफ्लेक्शन मैक्सिमम है तो स्लोप जीरो हो गया, तो स्लोप एट सेंटर इज जीरो, तो सी आई सी इज जीरो हो गया। तो आपको पूछा ही था फाइंड द स्लोप एट ए, तो स्लोप एट ए जब आई सी जीरो हो गया, ये देखो आई सी बिकम जीरो, तो आई ए इज इक्वल टू WL क्यूब अपॉन 24 EI। तो 24। ये हो गया आपका स्लोप एट ए जो पूछा है। इस पॉइंट पे स्लोप का फॉर्मूला ये, अब इसको निकाल लें। इसको अगर क्वेश्चन में W की वैल्यू दी होती, इसकी लेंथ दी होती EI की, तो आप इसको न्यूमेरिक फॉर्म में आपको मिल जाता, ठीक है। और स्लोप मिलता है डिग्री में, उसकी यूनिट डिग्री रहती है, रेडियन में लिखना हमेशा, रेडियन में, ठीक है। सो अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब आपको निकालना है, क्या निकालना है, डिफ्लेक्शन एट सी। इस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन निकालना है। अब आपको सिर्फ एरिया पता है, तो अब आपको इसका इस पार्ट का CG बस चाहिए। इस जो पार्ट है ACC1, इसका CG मिल जाए तो तुम्हारा काम हो जाए। और कहाँ से, A पॉइंट से यहाँ तक का। तो इसके CG का होता है 5/16L, ये फॉर्मूला होता है इस कॉन्टूर का, ऐसा वाला जो मिलेगा। इसको आप लिखना है, आपको याद रखना पड़ेगा कि ऐसा कॉन्टूर होगा तो उसके इस साइड से, यहाँ से अपेक्स साइड से, इस साइड से इस 5L/16 होता है। अगर यहाँ से पूछ लिया तो आपको L माइनस करके करना पड़ेगा, तो ये इस साइड से, बैक साइड से मिल जाएगा। तो इतना समझदारी आपको यूज करना आना चाहिए। अब आपके पास CG मिल गया उसका, तो आप सिंपली फॉर्मूला लगाओ। EI x 2 की जगह C लिया था, तो XC IC माइनस YC एंड माइनस ऑफ XA IA माइनस YA इक्वल टू AX बार। A पता है पहले से, WL क्यूब अपॉन 24 इंटू एक्स बार। CG ऑफ द गिवन एरिया इज 5L अपॉन 16। इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल गेट दिस रिलेशन 5L L की पावर 4 384। अब लगाओ बाउंड्री कंडीशन, चलो आओ देखते हैं। XC क्या है, देखो जरा, XC C की डिस्टेंस फ्रॉम A वो है, तो A से C की डिस्टेंस L/2 है। चलो देखो, XC मतलब A से C की डिस्टेंस तो L/2। IC स्लोप एट C, तो जहां पर डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होता है स्लोप जीरो होता है, तो वहां जीरो हो गया, तो IC हो गया जीरो। अब XA मतलब A की डिस्टेंस A से, XA मतलब A की डिस्टेंस A से, तो हो गई जीरो। A की डिस्टेंस A से जीरो। और जहां पर सपोर्ट होता है, चाहे सिंपली सपोर्ट हो चाहे कैंटिलीवर हो, सपोर्ट पे डिफ्लेक्शन हमेशा जीरो होता है, इसलिए जीरो होता है। y ए जीरो हो गया। अब देखो गौर से, आप सारी वैल्यू रखते जाओ, यहाँ पर रखो, यहाँ पर आइए, यहाँ पर IC जीरो है तो ये टर्म जीरो हो गई, ठीक है। यहाँ पर आइए, यहाँ पर XA जीरो है तो ये जीरो हो गया। और नेक्स्ट YA, ये देखिए ये जीरो है, YA तो ये जीरो हो गया, कुल मिला के सब जीरो हो गया। YC बचा आपका, तो YC आप यहाँ से कैलकुलेट कर लिए, YC इक्वल टू माइनस 5WL की पावर 4 384 EI। ये हो गया मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन गिवन बीम, जो आपका बीम का स्ट्रक्चर था। तो ये दिस इज द ऑल अबाउट द एरिया मूवमेंट एरिया मेथड, ठीक है। सो होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत नहीं, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन